Now today we will see the next category of operators, that is relational operators. Okay, in the last class we had seen arithmetic operators. लास्ट क्लास में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे एंड उसका यूज बताया था मैंने कि हाउ यू कैन यूज दोज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. We had studied 5 arithmetic operators, that is plus, minus, multiply, divide and modulo division. ठीक है, और इनका यूज मैंने बताया था आपको. प्लस इज यूज add 2 numbers, minus is used to subtract 2 numbers, multiply, asterisk is used for multiply, and this is for divide. Slash is for divide, and this is to return the remainder of a division. ये क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है, रिमाइंडर फ्रॉम डिविजन. ठीक है. Now today we will see the second category of operators in C, and that is the relational operators. Now relational operators are used for comparing two quantities. जब भी कभी हमें दो quantities को compare करना हो, A greater than B या A less than B या A not equal to B, so you have to use these relational operators. Now relational operators आपके ये सारे relational operators हैं. less than equal to, greater than equal to and not equal to. Now सपोज अगर हमें कंपेयर करना हो मैथ में, जैसे हमें अगर कंपेयर करना होता है कि अगर a b के बराबर है तो हम लिखते हैं a is equal to b. ठीक है. बट इन C this is wrong. If you want to compare a by b, then you have to write double equal to. This is the comparison operator. ये जो double equal to है, this is the comparison operator, and this compares two numbers for equality. मतलब ये दो numbers को equal होने के लिए compare करता है. जबकि a is equal to b में equal to is your assignment operator. assignment operator क्या करता है? राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में ट्रांसफर करता है या कॉपी करता है या असाइन करता है. ठीक है. So in C we have two different operators. One is single equal to and one is double equal to. Single equal to is your assignment operator, and ये हम यूज करते हैं A is equal to 10. इसमें means it is assigning the value 10 to A, and this is your relational operator. And relational operator, and this compares two number whether they are equal or not. तो अगर हम compare करते हैं A equal to 10, so this is comparing whether A is equal to 10. ठीक है. So you have to remember this. ये बहुत common mistake हो जाती है. तो जब भी कभी अगर आपको दो numbers को compare करना हो, use the relational operator double equal to, and when you are using a single operator equal to, it will act as an assignment operator. और वो कुछ नहीं करेगा, right side में जो भी कोई value होगी that will be assigned to the left side variable. Now जब भी आप कंपेयर करते हो दो वैल्यूज को, तो इनका रिजल्ट ईदर इट इज अ ट्रू और इट इज अ फॉल्स. अगर हम जैसे सपोज लिख रहे हैं a ग्रेटर देन b, नाउ सपोज a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5, ये अगर मान लीजिए है, और हम चेक कर रहे हैं इफ a इज ग्रेटर देन b. नाउ दिस इज कंपैरिजन, मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम दो वैल्यूज को a और b को. So this expression will evaluate to true or false. Evaluate to true or false. अब ये condition true कब होगी? When A is greater than B. इस केस में हमारा क्या है? A 10 है और B 5 है. So this condition will be true. ठीक है. Now if I say A is equal to 5 and B is equal to 10, and फिर हम कंपेयर करते हैं A greater than B,
तो ये वाली कंडीशन क्या इवैल्यूएट होगी, फॉल्स, बिकॉज नाउ a is 5 and b is 10 and a is not greater than 5, it is less than 5. तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इवैल्यूएट टू फॉल्स. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि जब भी कभी आप कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हो, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, एंड जो भी एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके बनता है, दैट इज नोन एज एन अ रिलेशनल एक्सप्रेशन. दिस इज आल्सो इन रिलेशनल एक्सप्रेशन. ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ईदर 1 और 0. if 1 it is 1, if it is 1 the specified relation is true, and if it is 0 it is false. so 1 का मतलब होता है true and 0 का मतलब होता है false. ठीक है, तो relational expression is what any expression that includes certain relational operators is known as a relational expression. और relational expression की value true या false होगी, या 1 या 0 होगी. 1 का मतलब true होता है, false is 0. now now ज्यादातर जो रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. वी विल बी यूजिंग देम इन इफ, इन व्हाइल, फॉर, मतलब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे. दे विल बी यूज्ड इन लूप्स which we learn in the further coming chapter, and if conditional statements and loops में हम use करेंगे. so for now कि relational operators होते क्या है, relational operators are used for comparing two values. okay, now next is logical operators. logical operators क्या होते हैं, logical operators they are used to join two or more conditions. suppose अगर आपका इस तरह से आप कहना चाहते हो कि से जो डिवीजन होती है, डिवीजन या ग्रेड, ग्रेड के लिए हम क्या करते हैं, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट. तो ग्रेड में क्या होता है कि से इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन equal to 90, then the grade is A. if the percentage is greater than equal to 75 and less than say 90, then grade is B. ठीक है, इस तरह से आपका ग्रेड कैलकुलेट हो रहा है. ठीक, now suppose, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि if grade if say percentage greater than equal to 75 and this is logical and क्या करता है, दो कंडीशंस को ज्वाइन करता है, एंड जो हिंदी में हम कहते हैं और, हिंदी वाला और, दैट इज एंड. ओके, सो if percentage is greater than equal to 75 and percentage is less than 90, then we can say grade is equal to B. ठीक है, अब इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अब देखो, if grade if percentage greater than equal to 90, we can say directly grade is equal to A. ये तो सिंपल है. ठीक है, क्योंकि इसे 90 से ऊपर 90 या 90 से ऊपर मार्क्स पे ग्रेड ए है, लेकिन ग्रेड बी के लिए मार्क्स या परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड इट शुड बी लेस देन 90. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ दो डिफरेंट कंडीशंस हैं, एंड व्हेन द मार्क्स और द परसेंटेज lie between these two values, मतलब कि 75 से लेके 90 के बीच में अगर मार्क्स हैं किसी के या परसेंटेज हैं, then the grade of the student is B. तो अब इस केस में आपको दो कंडीशंस को ज्वाइन करना है. दिस इज कंडीशन 1
and this is condition 2. Now ग्रेड बी कब होगा स्टूडेंट का, जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगे, ठीक है. सो दिस इज योर लॉजिकल एंड, ये दो कंडीशंस को ज्वाइन करता है विद द कंडीशन दैट बोथ द कंडीशंस शुड बी ट्रू फॉर द फाइनल कंडीशन टू बी ट्रू. सो आई जस्ट राइट इट बोथ. इसमें लॉजिकल एंड में क्या होता है, लॉजिकल एंड में बोथ कंडीशंस should be true for the final condition to be true. Now एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. सपोज किसी का परसेंटेज से 79 है. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट. अब हम ये चेक करेंगे कंडीशन परसेंटेज 75 या उससे ज्यादा है, तो पहली वाली कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है. फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड सेकंड कंडीशन परसेंटेज इज लेस देन 90. नाउ 79 इज लेस देन 90, सो दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू. और जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो उनका लॉजिकल एंड भी ट्रू होता है and hence the grade will be B. ठीक है, so the grade will be B. Now we'll take in another example. Suppose the percentage of a student is say we can take the percentages 93. अब 93 में क्या हो रहा है, 93% जब है तो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है. ठीक है, और जो परसेंटेज लेस देन 90 वाली कंडीशन है दैट इज फॉल्स, क्योंकि इसे परसेंटेज क्या है 93 है विच इज बियॉन्ड 90. ठीक है, 75 से तो ऊपर है लेकिन 90 से कम नहीं है, 90 से भी ऊपर है. तो ये कंडीशन हमारी सेकंड कंडीशन फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है. तो जब लॉजिकल एंड में एक कंडीशन ट्रू होती है और एक कंडीशन फॉल्स होती है, द रिजल्टेंट कंडीशन इज मींस कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ही आपकी फाइनल कंडीशन ट्रू होगी. सो दिस इज लॉजिकल एंड, जिसे हिंदी में हम और बोलते हैं. ठीक है, नाउ इसका एक एग्जांपल आप इस तरह से और ले सकते हो. सपोज इफ वी वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड whether a person is eligible for voting, whether a person eligible for voting. ठीक है, अब वोटिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए देर आर टू डिफरेंट कंडीशंस. फर्स्ट इज द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए पर्सन के पास, उसको वोटिंग राइट्स होने के लिए इन इंडिया. ठीक है, एंड द सेकंड इज एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18. सो दीज आर द टू conditions required for a person to be eligible for voting in India. ठीक है, तो सपोज अब हम पता करना चाहते हैं कि मेरे पास एज है किसी की, सपोज एज ऑफ अ पर्सन इज से 20 एंड सिटीजनशिप एक वेरिएबल है, सपोज वो है n मींस नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड y मींस he is a citizen of India. अब ये हमें चेक करना है whether this person is eligible for voting or not. तो अब हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, if age greater than equal to 18 and citizenship is equal to yes, मतलब इंडियन सिटीजन है, मतलब कि एज 18 से ज्यादा है और सिटीजनशिप
इंडिया की है, देन द पर्सन इज एलिजिबल। ठीक है, प्रिंट एफ एलिजिबल। और नहीं तो अगर इन दोनों में से एक भी कोई कंडीशन नहीं सही है तो पर्सन कैन नॉट वोट या ही इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, अब अगर हम ये वैल्यूज को यहाँ पे डाल के देखें तो हमारी पहली वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है, एज इज 20 विच इज अबव 18। ओके, बट सिटीजनशिप पर्सन की नहीं है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो इस केस में ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स। एंड जब एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है तो द रिजल्टिंग कंडीशन विल बी फॉल्स। सो दैट मीन्स द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अब अगर हम इसमें दूसरा एग्जांपल ले लें, सपोज इफ आई मेक इट से एज को हम कर देते हैं 16, एज को हम 16 कर देते हैं एंड सिटीजनशिप को यस कर देते हैं। ठीक है, नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इस केस में क्या होगा आपका, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 विल बी फॉल्स, क्योंकि से एज कितनी है 16 है एंड 16 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 18 but the person is citizen of India, so this is true, the second condition is true। now एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो जो रिजल्टिंग कंडीशन है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। सो अगेन द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, now we can consider one more example, we can change the values to, इसको कर देते हैं हम से 26 एंड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यस है। अब इस केस में क्या होगा, दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हो जाएंगी, दिस इज आल्सो ट्रू एंड दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 यस, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यस, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, द रिजल्टिंग कंडीशन विल आल्सो बी ट्रू। मतलब कि अब दोनों कंडीशंस जो रिक्वायर्ड हैं वोटिंग के लिए, एलिजिबल होने के लिए, both the conditions are satisfied, both the conditions are true, so the person is eligible to vote। ठीक है, तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स कब यूज होते हैं, टू जॉइन टू और मोर कंडीशंस, क्योंकि से कई बार क्या होता है कि कंडीशंस एक सिंगल ना होकर के कोई चीज दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, देन इन दैट केस यू हैव टू जॉइन टू कंडीशंस। और जब भी हमें दो कंडीशंस को करना पड़ता है ना, सी इंग्लिश से काफी कुछ रिलेटेड है, एंड और आप कहाँ इंग्लिश में भी यूज करते थे, तो एंड क्या करता है, एंड इज अ कंजंक्शन, मतलब आपको करना है दिस एंड दिस, ए एंड बी, तो एंड क्या करता है, दो चीजों को ज्वाइन करता है। So here also the logical and is used to join two conditions. So logical operators are used to join two or more conditions। ठीक है, तो कई बार हमारी कोई चीज एक सिंगल उस पे ना डिपेंड करके डिपेंड्स ऑन टू और मोर कंडीशंस, देन इन दैट केस लॉजिकल operators are used in such situations। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको बताया लॉजिकल एंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लॉजिकल और। नाउ लॉजिकल एंड की एक ट्रुथ टेबल होती है, मींस अभी हमने 4 केसेस कंसिडर किए हैं, तो सपोज दिस इज कंडीशन ए, दिस इज कंडीशन बी, ये दो कंडीशंस हैं, these two are two different conditions, okay, and this is A and B, this is the join of these two conditions। ठीक है, अब आपके 4 केसेस बनेंगे, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो आपकी जो जॉइन कंडीशन है A and B, that will also be true, क्योंकि से दोनों कंडीशंस ट्रू होते हैं
तो लॉजिकल एंड कंडीशन भी ट्रू होती है. इफ एनी वन ऑफ देम इज फॉल्स देन द रिजल्टिंग कंडीशन इज फॉल्स. तो मीन्स अगर ए फॉल्स है और बी ट्रू है, या बी फॉल्स है ए ट्रू है, दोनों ही केस में द रिजल्टिंग कंडीशन इज फॉल्स. एंड इफ बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स then naturally the final condition is also false. So means कि अगर किसी पर्सन की एज 16 है और सिटीजनशिप उसकी नो है, तो दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं. दिस इज आल्सो फॉल्स, दिस कंडीशन इज आल्सो फॉल्स. तो दोनों कंडीशंस फॉल्स होने पे जो रिजल्टिंग कंडीशन है वो भी फॉल्स होगी, एंड the person is not eligible for voting. So that means a person is eligible for voting only when his or her age is greater than equal to 18 and he or she is a citizen of India. ठीक है. तो in a nutshell we can say कि logical operators are used to join two or more conditions. यहाँ पे आपका लिखा भी है want to test more than one condition and make decision, then you can use the logical operators. ठीक है. ना लॉजिकल ऑपरेटर में हमने सबसे पहले एक पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड. ठीक है. ये दो कंडीशंस को ज्वाइन करता है, एंड दिस द फाइनल कंडीशन इज ट्रू व्हेन both or all the conditions are true, then only the final condition is true in case of logical and. ठीक है. Now next is or, logical or. Logical or में क्या होता है, जो इन हिंदी भी से या, मतलब या तो ये हो या तो ये हो. मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें दो पर्टिकुलर केसेस में से यू गेट द सेम थिंग. तो वहां पे आप कहते हो या तो ये हो या तो ये हो. हाँ, सपोज यू कैन से कि आपको 11th 12th में यू आर अलाउड टू चूज अ सब्जेक्ट. मतलब आप 10th के रिजल्ट के बेसिस पे यू आर अलाउड टू चूज सब्जेक्ट कि आप साइंस ले सकते हो कि नहीं. ठीक है. आर यू एलिजिबल टू टेक साइंस एज अ सब्जेक्ट. ठीक है. तो सपोज उसके लिए ऐसी कंडीशन है कि आपके या तो से फिजिक्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 70 मार्क्स हो, या केमिस्ट्री में ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो, या मैथ्स में. ओके. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. मीन्स कि a person is allowed allotted a science stream if he or she wants, if the marks obtained in physics, chemistry या math में किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर उसके 70 से ऊपर मार्क्स हैं, या you can take it से जो भी लेना है, तो उस केस में the person is eligible for science. ओके. तो अब यहाँ पे ये कंडीशन आपकी क्या है, तो यहाँ पे आप ये तीन डिफरेंट कंडीशंस को किससे ज्वाइन करोगे, बाय द लॉजिकल और कंडीशन. सो हाउ विल वी राइट दिस कंडीशन, वी विल राइट इफ से phy greater than equal to 70, or this is the or operator, this is the logical or operator. दो पाइप सिंबल कहते हैं, इनको यूज किया जाता है, एंड में दो एम्परसेंड साइन यूज होते हैं. तो हमने लिखा इफ pH इक्वल टू 70 और chem greater than equal to 70 और math greater than equal to 70, then the person is eligible for science subject. ठीक है. तो अगर किसी के तीनों सब्जेक्ट्स में से एक किसी सब्जेक्ट में भी मार्क्स 70 से ऊपर है, PCM में से किसी में भी एक में मार्क्स 70 से ऊपर है, then he or she is eligible for science subject, otherwise not. तो अगर किसी स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स 70 से कम है, then that person is not eligible
एंड अगर एक भी सब्जेक्ट में 70 से ऊपर मार्क्स हैं देन द पर्सन इज एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट. ठीक है. नाउ इसके हम कुछ केसेस ले सकते हैं. से जस्ट इसको एक टैबुलर फॉर्म में हम बना देते हैं. से ये आपके पी के मार्क्स हैं, फिजिक्स के मार्क्स हैं, ये केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, एंड दिस इज मैथ मार्क्स. वी जस्ट कंसिडरिंग द डिफरेंट केसेस एंड दिस इज eligibility. Now सपोज फिजिक्स में मार्क्स 72 है, केमिस्ट्री में 65 है, मैथ में 67 है. देन एलिजिबिलिटी क्या है? यस, बिकॉज एक सब्जेक्ट में 70 से ऊपर होना जरूरी है. अगर तीनों ही सब्जेक्ट्स में 70 से ऊपर हैं तो भी एलिजिबल है, बिकॉज कंडीशन ये कह रही है या तो फिजिक्स में ज्यादा हो 70 से, या केमिस्ट्री में हो, या मैथ में हो. तो तीनों में है तो कोई एलिजिबिलिटीज यस. अगर तीनों में कम है 67 से 65 एंड 62 देन एलिजिबिलिटी इज नो. सो बेसिकली और कंडीशन में सिर्फ जब सारी कंडीशंस फॉल्स होती है देन रिजल्टिंग कंडीशन इज फॉल्स. अगर एक भी कंडीशन ट्रू है देन द रिजल्टिंग कंडीशन इज ट्रू. तो अगर सपोज किसी के दो सब्जेक्ट्स में मार्क्स 70 से ऊपर हैं और एक में कम है then also the person is eligible. So only in one particular case the student is not eligible to take the science subject when उसके तीनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स 70 से नीचे है. ठीक है. तो और का मतलब होता है either of the condition should be true for the final condition to be true. So this is the logical or operator. तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं. नाउ situations, now these are just for examples. मैंने आपको just example दिया. प्रोग्राम्स लिखोगे तो तब इनकी काफी जरूरत पड़ती है. आपको सिचुएशन देख करके ही समझ में आएगा कि आपको यहाँ पे एंड कंडीशन यूज करनी है या और कंडीशन यूज करनी है. when you read the question it will be clear कि logical and यूज होगा या logical और यूज होगा. So the basic thing is you should remember कि logical and या logical or किस लिए यूज होता है? To join two or conditions. क्योंकि कई बार जो decision making होती है it is not on one single condition, it is based on two or more conditions. In that case logical and logical or are used for joining the two or more conditions. ठीक है. Now the third is logical not. नॉट जो होता है, नॉट का मतलब है कोई भी चीज में नॉट लगा देते हो तो क्या हो जाता है? अगर कोई कंडीशन ट्रू है, जैसे मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 70. if I am saying percentage greater than equal to 70, this is one way of writing a condition. I can say percentage not less than 70. नॉट का साइन ये होता है एक्सक्लेमेशन. ना बोथ द थिंग्स आर सेम. अगर आप इसको दोनों कंडीशंस को ध्यान से देखो, एक तरफ आप बोल रहे हैं परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, मतलब कि परसेंटेज या उससे ज्यादा है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो परसेंटेज 70 नहीं है. तो जब 70 से कम नहीं है, नॉट लेस देन 70 मीन्स एक्चुअली क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होगा. अगर कोई भी मतलब अगर परसेंटेज 70 से कम नहीं है तो क्या होगा? 70 से ज्यादा होगा. ठीक है. तो किसी भी कंडीशन के आगे अगर आप नॉट लगा देते हो तो वो कंडीशन एक तरह से रिवर्स हो जाती है या कंडीशन आपकी नेगेट हो जाती है. तो कोई चीज अगर ट्रू है वो फॉल्स हो जाती है, फॉल्स जो है ट्रू हो जाती है. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग, मैंने आपको जो लॉजिकल एंड की ट्रुथ टेबल बना के दिखाई थी. नाउ वी कैन ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल और ऑल्सो. नाउ दिस इज, these are the two conditions, A and B are the two conditions.
और उनको हमने किससे ज्वाइन किया हुआ है, बाय लॉजिकल और, ठीक है, दो कंडीशंस को हमने लॉजिकल और से ज्वाइन कर रखा है। नाउ लॉजिकल और में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो फाइनल कंडीशन इज आल्सो ट्रू। When one condition is true, one is false, then also the condition is true. When the first is false, second is true, then the final condition is true. So only when both the conditions are false, when both the conditions are false, then only the resulting condition is false. So this is the truth table of logical or, ठीक है। सो एक ही केस में सिर्फ आपकी फाइनल कंडीशन फॉल्स होती है, both the conditions are false, then the final condition is false. एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो फाइनल कंडीशन आपकी ट्रू होगी, ठीक है। नाउ नॉट की ट्रुथ टेबल सिंपल सी है। नॉट सिर्फ क्या करता है, कंडीशंस को जस्ट नेगेट करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, ठीक है। तो सपोज ए कंडीशन है यहाँ पे और यहाँ पे है नॉट ए, तो अगर ये ट्रू होगी, ए कंडीशन ट्रू है तो नॉट ए विल बी फॉल्स, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। और अगर ए फॉल्स है तो नॉट ए विल बी ट्रू। दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल नॉट, जिसके लिए ऑपरेटर आप यूज करते हो एक्सक्लेमेशन, इसके लिए ऑपरेटर यूज करते हो आप डबल पाइप सिंबल, एंड लॉजिकल एंड इज योर, लॉजिकल एंड आपका होता है डबल एम्परसेंड साइन, ठीक है। अगर इसी में हम एक्सटेंड कर दें एंड को भी, इसमें एंड का भी जोड़ दें, तो एंड के केस में क्या होता है, व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन द रिजल्टिंग कंडीशन इज ट्रू, एल्स बाकी सारे केसेस में द रिजल्टिंग कंडीशन इज फॉल्स। सो दिस इज अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अभी हमने पढ़ा रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। Now next is assignment operators. Assignment operators. Assignment operator वैसे तो हमें पता ही है, आप लिखते हो equal to is your assignment operator. Equal to is your assignment operator. So when you say A equal to B या A equal to 10 या A is equal to A plus 1, इन सभी स्टेटमेंट्स में आप क्या कर रहे हो, राइट साइड की जो वैल्यू है दैट इज बीइंग असाइन्ड टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। हियर दिस इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इट असाइंस द राइट हैंड साइड वैल्यू, राइट साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में वेरिएबल में असाइन करता है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ इसमें इस केस में ये क्या कर रहा है, a इज इक्वल टू a प्लस 1 मीन्स इट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ a बाय 1। तो अगर सपोज a में वैल्यू 10 थी तो इस स्टेटमेंट को रन करने के बाद a की वैल्यू इंक्रीज होकर के हो जाएगी 11, ठीक है। सो दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर इसके अलावा भी कुछ एक ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो दे आर, एक तो आपका हो गया इक्वल टू, मैंने आपको बताया इक्वल टू ऑपरेटर इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर एक होता है प्लस इज इक्वल टू, एक होता है माइनस इज इक्वल टू, एक होता है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, एक डिवाइड इज इक्वल टू एंड एक मॉड्यूलस इज इक्वल टू, ठीक है। दीज ऑल आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नाउ ये तो सिंपली आपने लिखा ए इज इक्वल टू बी। नाउ प्लस इज इक्वल टू कब यूज करते हैं, जैसे आपको लिखना है a इज इक्वल टू a प्लस 5, तो उसको आप लिख सकते हो a प्लस इज इक्वल टू 5। दिस इज अ शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग दिस स्टेटमेंट। a प्लस इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू a प्लस 5 आर वन एंड द सेम थिंग। तो इट इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग। ये जो प्लस इज इक्वल टू है दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है।
बट ये ज्यादा ऑपरेटर्स यूज नहीं होते हैं, ये जस्ट आपका कोड को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए यूज होते हैं। a इज इक्वल टू a+5 लिखने की जगह आपने इसको क्या लिख दिया, a प्लस इज इक्वल टू 5। बोथ मीन द सेम थिंग, दोनों का मतलब सेम है, दोनों सी में सेम तरह से ट्रीट होंगे। सिमिलरली माइनस इज इक्वल टू का मतलब है a इज इक्वल टू a-5 को आप लिख सकते हो a माइनस इज इक्वल टू 5। सिमिलरली a इज इक्वल टू a इंटू 5, इसको आप लिख सकते हो a इंटू इज इक्वल टू 5। देन a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 5 को लिख सकते हो आप a डिवाइड इक्वल टू 5। सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग। हाउएवर ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे ज्यादा जो यूज होता है ऑपरेटर, दैट इज दिस इज इक्वल टू, बस इज इक्वल टू ऑपरेटर ही सबसे ज्यादा आपका यूज होता है। रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स आर नॉट यूज वेरी मच, ठीक है। सो ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। सो आई जस्ट एंड द क्लास फॉर टुडे विद दिस। सो टिल नाउ वी हैव लर्नड 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विच वी लर्नड इन द लास्ट क्लास। आज हमने पढ़े रिलेशनल ऑपरेटर्स which are used for comparing 2 or more values. Okay, comparison के लिए यूज होते हैं, comparison operators होते हैं। So greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, all these are relational operators. फिर हमने पढ़े लॉजिकल ऑपरेटर्स, जब दो या दो से ज्यादा कंडीशंस कंबाइन करनी होती है हमें टू फॉर्म अ मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशन, because at times a particular thing depends on 2 or more conditions, तब हमें कंडीशंस को ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है। देन वी यूज द लॉजिकल एंड और द लॉजिकल और ऑपरेटर, या नॉट ऑपरेटर यूज होता है। सो दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड तीसरा हमने पढ़ा आज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो these are the various assignment operators which I've just written down here. इनमें से जो सबसे कॉमनली यूज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर है दैट इज द equal to. Rest of the operators are used very less. Just वो थोड़ा सा एक कैरेक्टर कोड को कम कर देते हैं. So it is just a shortcut way of writing a particular expression. So I'll end the class for today with this, and the remaining operators we'll cover in the next class.